अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज जिले सिद्दीपेट में अपने आबाई मौजे चिंतामडका का दौरा किया। उन्होंने मकामी मंदिर में पूजा की और कई तकारीब में शिरकत की। बाकायदा जलसे से भी खिताब किया। केसीआर की आमद पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। पूरे मौजे को फूलों और TRS पार्टी के परचमों से सजा दिया गया था। साबिक वजीर T हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजाम की निगरानी की और कहा कि चिंतामडका के शहरी अब अपने आप को चीफ मिनिस्टर के मौजे से अपना तारुफ करवाते हैं और इस पर उन्हें फख्र भी है। इस जलसे में मेदक के रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, सदन नशीन जिला परिषद रोजा शर्मा, MLC फारूक हुसैन, रुकने असెంబ్లీ राम रेड्डी वगैरह भी मौजूद थे। గూడూరులో బట్టుపంతులు బట్టి నుంచి మొదలైంది నా బతుకు పెద్ద బాల శిక్షణ ఇచ్చి ఆ నుంచి మా మేనమామ మాధవరావు గారు నుండే ఆయన తీసుకెళ్లి తోర్నాల కట్టడాన్ని చదివిపించాడు. ఆ తర్వాత నాది రకరకాలుగా అయిపోయి దుబ్బాకకు పోయినండి. కొద్ది రోజులు నడిచిపోయినాం. మా రాఘవరెడ్డి సారు నాకు విద్య నేర్పి మా బయటికి ఇచ్చారంటే నా ముందనే కూర్చున్నాడు. సంజీవ్ రెడ్డి ఉంటే మొన్ననే చచ్చిపోయిండు. మేమంతా క్లాస్మేట్స్ ఉంటిమి. అందరం కలిసి నడిచిపోయే వాళ్ళం. తర్వాత మేము అక్కడ రాఘవరెడ్డి సార్ ఇంట్లో ఆశ్రయం పొంది అక్కడ హై స్కూల్ విద్య నేర్చుకున్నాం. వాళ్ళకు కూడా నేను రుణపడున్నా. చింతమడక నన్ను పాలిచ్చి కొంచెం పెద్దగా చేస్తే గూడూరు కావచ్చు, తోర్నాల కావచ్చు, దుబ్బాక కావచ్చు, పుల్లూరు కావచ్చు, వీళ్ళు నన్ను విద్యా బుద్ధులు నేర్పినారు. అక్కడ అద్భుతమైన పాఠాలు చెప్పినారు. మా గురువు మృత్యుంజయ శర్మ గారు చెప్పిన తెలుగు సాహిత్యం ఎంత గొప్పోడంటే, ఒకరోజు ఆయన ఏం చేసేదంటే ఆయనకు ఒక అలవాటు ఉండేది. అలవాటు ఏంటంటే ఒక పద్యం చెప్పి తాత్పర్యం చెప్పి దీన్ని ఎవరైతే రేపు కంఠస్థం చేసి దోషం లేకుండా అప్పచెప్తారో వాళ్ళకు ఒక 100 పేజీల నోట్బుక్ ప్రైజ్ రా అని చెప్పింది. ఆయన సొంత డబ్బులు నుంచి కొనిచ్చేది పాపం. ఒకరోజు ఉత్తర గోగ్రామం అని పాట చెప్పింది మాకు. పద్యం జర గొట్టుంటుంది, అది అంటానికి నాలుగని జర జరుగుడు కష్టం ఉంటుంది. అది ఏం లేదు, పెద్ద ముచ్చట్లేదు, కానీ పద్యం సమాసాలు. అది ఏంటంటే ఆ విరాటరాజు కొలువులో అజ్ఞాతవాసంలో పాండవులు ఉంటారు పాపం. అజ్ఞాతవాసం ఉన్నప్పుడు అక్కడ పని చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విరాటరాజుకు ఉత్తర కుమారుడని కొడుకుంటాడు. వాడు రాజు బిడ్డనే కానీ మనకి ధైర్యం తక్కువ ఉంటుంది. ఈ దుర్యోధనుడు సైన్యం అంతా వాళ్ళ ఆవుల మంద మలుపుకపోదామని వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని చూసి భయపడి ఈ ఉత్తర కుమారుడు చెట్టు ఎక్కి కూర్చుంటాడు. అప్పుడు అక్కడ అర్జునుడు మారువేషంలో ఉన్న అర్జునుడు, అరే నువ్వు రాజు బిడ్డవరా బాబు, నువ్వు సత్య జావాలి బతికే బతకాలి, కానీ చెట్టు ఎక్కి మూలకు జాగుండద్దు, దిగు కొట్టాడంటే నేను కొట్టాడ నా వల్ల కాదు అంటాడు. అది పద్యం. ఆ పద్యం చెప్పి ఆ సార్ ఏం చేసిందంటే, ఇది ఎవడైతే అప్పచెప్తాడో వానికి రేపు 200 పేజీల నోట్బుక్ ప్రైజ్ రాను. నేను సార్ ఇంట్లో ఉన్నా కాబట్టి అంతకుముందు కొద్దిగా బట్టి కొడతాం మేము. ఆ బట్టి కొట్టిన అలవాటు ఉండే. దాంతో నేను లేచి నిలబడి, సార్ నేను తమరు అనుమతి ఇస్తే నేను ఇప్పుడే అప్పచెప్తా సార్, 5 సార్లు చదివాను. నీ బొంద కూర్చోరాను. మళ్ళీ తిరిగి పాప ఆయనకి ఏమనిపించింది, ఆయన్ని మళ్ళీ తిరిగి చంద్రశేఖర్ రాయడా ఎస్ సార్ అప్పచెప్తావురా, అప్పచెప్తా సార్ రమ్మన్నాడు. స్టేజ్ మీద పిలిచిన పుస్తకం చేతికిచ్చాను. 5 సార్లు చదివి నేను అమ్మవారికి దండం పెట్టి ఆ బుక్కాడ పెట్టి అప్పచెప్పిన. చాలా సంతోషపడ్డాడు ఆయన. బాగున్నదిరా అని చెప్పి. ఎంత గొప్ప ఉపాధ్యాయులు ఆ రోజుల్లో ఉండేదంటే, ఎవడన్నా పిల్లగాడు తయారు చేసి అవుతాడనుకుంటే వాళ్ళు కూడా గొప్ప కష్టపడేది. స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి పోలే, చక్కగా మా సారింటికి వచ్చిన మా రాఘవరెడ్డి సారింటికి. అప్పుడు మేము ఏం చేసేదంటే కాపువాడల పాలు తీసుకొని సార్ల ఇళ్ళల్లో పెట్టేచ్చేది. నేను కాపువాడ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి వాడికి పాలన్నమాట. మా రొట్టె రాజమౌళి అన్న కూడా వచ్చేది ఇక్కడనే ఉన్నాడు, ఆయన తెలిసే విషయాలన్నీ. అక్కడ పాలు ఇచ్చేది ఉంటే నేను నాకు 3-4 సార్లు ఇళ్ళల్లో పెట్టే వంతు నాకుండే. ఈ శర్మ సార్ మా ఇంటికి వచ్చి రాఘవరెడ్డి సార్తో చెప్పిండు, రాఘవరెడ్డి రేపటి నుంచి వీని 3-4 ఇళ్ళకి తోలకు, ఒక నా ఇంటికే తోలా, వీనికి మంచి అమ్మవారి దయ ఉంది, వీనికి నేను తయారు చేస్తా అని చెప్పాడు. ఏం లేదని, ట్యూషన్ లేదు, ట్యూషన్ ఫీజు లేదు, ఏం ప్రతిఫలాపేక్ష లేదు. ఇంటికి రమ్మని చెప్పి పిలుచుకొని ఆయన్నే రోజు 5 గంటలకే నేను స్నానం చేసి రెడీ అయిపోయేది. వాళ్ళ పాలు తీసుకొని వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇచ్చిన తర్వాత సార్ పూజ చేసుకొని తయారుగా ఉండేది. కూర్చొని నాకు గంట సేపు పరవస్తు చిన్నేశ్వరి బాలవ్యాకరణం నుంచి మొదలుకుంటే భారతము ఇవన్నీ భాగవతం తెలుగు సాహిత్య లోకంలోకి నా గవాక్షాన్ని తెరిచిండు ఆయన. అద్భుతమైనటువంటి 10వ తరగతికి వచ్చే వరకే అక్కడ రామసముద్రం అని చెరువు ఉంటుంది దుబ్బాకలు. ఆ చెరువు కట్ట మీద కూర్చొని పద్యాలు రాసేటువంటి పరిస్థితికి నన్ను తయారు చేసి, అంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఆ రోజులలో ఉండేది. అటువంటి గురువులు నాకు బుద్ధి చెప్పిన జాగా ఈ గూడూరు కావచ్చు, ఈ తోర్నాల కావచ్చు, పుల్లూరు కావచ్చు, అట్నే దుబ్బాక కావచ్చు, ఈ ప్రాంతంలో నేను చదువుకున్నా.
जीएचएमसी ने अजीमतर हैदराबाद में 457 ऐसी इमारतों की निशानदेही की है जो बोसीदा और मखदूश हो गई हैं और इस सिलसिले में इन इमारतों के मालिकीन को तखलीक की नोटिस दी गई है। बल्दिया के कमिश्नर दाना किशोर ने आज तमाम जोनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई। उन्होंने मानसून के दौरान नालों की सफाई के अलावा हरिताहरम प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कॉलोनियों के नुमाइंदों और अफराद को भी शजर फराहम किए जाएं। कचरे की निकासी के लिए मजीद गाड़ियों में इजाफे की भी हिदायत दी। दाना किशोर ने उम्र वजीफा में इजाफे के बाद बल्दिया के मुलाजिमीन के बारे में मालूमात इकट्ठा करने की भी बात कही। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर अमरपालिका, चीफ इंजीनियर सुरेश गयासुद्दीन, टाउन प्लानिंग ऑफिसर देवेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। भोपाल की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर तबसरा करते हुए कि वो नाली और शौचालय साफ करने के लिए मुंतखब नहीं हुई है, सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए खुला चैलेंज है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का बयान उनकी सोच और जहनियत की तर्जुमानी करता है। एक ऐसे फर्द से जो दलितों के बारे में अपने दिल में कदूरत रखता हो ऐसी ही बात करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर चाहती हैं कि दलित और पिछड़े तबकात बदस्तूर यही काम करते रहें और यही तो बीजेपी का न्यू इंडिया है। ठीक है ना, आप ऐसा सांसद चाहते हैं क्या? नहीं ना, तो ध्यान रखो, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। कि ये बता रही हैं कि वो बड़े अपर कास्ट की हैं और जो लोग वो टॉयलेट साफ करते हैं वो उनके पोजीशन के बराबर नहीं है, तो ये न्यू इंडिया कहाँ बनेगा? अरे इनसे तो यही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। ये तो चाहते हैं कि इस मुल्क में ये क्लास और कास्ट सिस्टम रहे और जो दलित तबके के लोग हैं वो इसी तरह का काम करें, तो वही तो वो उसको जस्टिफाई भी कर रही हैं और उसको डिफाइन भी कर रही हैं। शहरियों की अवामी मसाइल की समाअत के लिए आज जीएचएमसी के हेड ऑफिस टैंकबंड पर प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें जीएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर के बशमूल बल्दिया के मुख्तलिफ शोबों के अहदेदार शरीक थे। दाना किशोर ने टाउन प्लानिंग शोबे की गफलत और लापरवाही की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चंद अहदेदारों को चार्ज मेमो जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में अवाम अपनी शिकायत रास्त अहदेदारा बाला के पास पहुँचा सकते हैं। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली मस्जिद कारवान के रूबरू गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल कुसुमपुरे की नई 4 मंजिला इमारत का इफ्तिताह किया, जिसमें 20 नई क्लासरूम हैं। बाध्यता हमारे नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि 2 साल की मुद्दत में इस इमारत की तकमील मुकम्मल हुई है, जिस पर 1,54,00,000 रुपए का खर्च आया। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के कई स्कूलों इमारतों की तामीर का काम जारी है। इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वेंकट नरसिम्हा के अलावा मुकम्मल तालीम और सुरक्षा अभियान के अहदेदार भी मौजूद थे।
लाख की लागत से बिल्डिंग G+4 बनकर तामीर है। आज बिल्डिंग का इफ्तिताह है। इस प्रोग्राम के अंदर हैदराबाद के DO मैडम और सर्व शिक्षा अभियान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कारवान कॉर्पोरेटर रियादत साहब और मेरी जमात के तमाम जिम्मेदार सदर मुतमदीन और इस स्कूल के HM साहब और तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्क़े कारवान के अंदर जो साबिक़ा में 7 महीने पहले जो हमने कारवान के उर्दू मीडियम तेलुगु मीडियम स्कूल्स के जो प्रपोजल दिए थे उन तमाम प्रपोजल के काम मुकम्मल हो चुके। मैं समझता हूँ गोलकुंडा हो या कारवान हो या जियागोड़ा हो, चाहे कोई से भी मेरे इलाके के अंदर जो प्रपोजल दिया मैं बिल्डिंग के मेंटेनेंस का हो या नई तामीर के लिए, तमाम के तमाम DO मैडम जो हमारे मौजूदा मैडम हैं उन्होंने आने के बाद मैं हल्क़े कारवान के तमाम बिल्डिंग्स का दौरा भी करा और प्रपोजल भी दिया था। उन तमाम काम मुकम्मल हो चुके और चंद स्कूल्स के अंदर मैं खास तौर से अभी DO मैडम से भी रिक्वेस्ट करा, हर स्कूल के अंदर जो PT का जो क्लास रहता है और हाई स्कूल के अंदर उनको स्पोर्ट मटेरियल देने की ज़रूरत है और उन्होंने इंशाल्लाह कोशिश करके दिलाने की अब तय होंगे। और फिर एक बार मैं DO मैडम का, साहब का, इन तमाम स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह गोलकुंडे के अंदर भी इसी तरीके से कई नई बिल्डिंग तामीर है, इंशाल्लाह उस बिल्डिंग के भी इफ्तिताह अमल में आएंगे। और हमारे राजेंद्र यादव साहब गुड्डी मलकापुर अल्लूरी सीताराम नगर में जो स्कूल का जो मसाइल बताए, इंशाल्लाह उस मसाइल को भी ये मैडम भी और साहब भी गौर कर सैंक्शन करने का तय होंगे। मैं फिर एक बार DO मैडम का, साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक असेंबली के मामले में मजीद मुदाखलत से इनकार कर दिया और बताया कि फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर को हिदायत देने से मुतालिक दरखास्त की फौरी तौर पर समाअत नहीं की जा सकती। कर्नाटक असेंबली के 2000 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश की थी कि वो स्पीकर को 22 जुलाई पीर को ही फ्लोर टेस्ट करवाने की हिदायत दें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सरकारी वकील की दरखास्त पर कहा कि ये दरखास्त इतनी अहम नहीं है कि जिस पर आज ही बातचीत की जाए, कल या परसों भी इस पर गौर किया जा सकता है। रियासत बिहार और आसाम में सैलाब से मरने वालों की तादाद 166 हो गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सैलाब के नतीजे में मरने वालों के पसमानदगान को फीकस 4 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। जुनूबी रियासत केरला में मूसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में 4 अफराद के हलाक हो जाने और 3 के लापता हो जाने की इत्तला मिली है। भगवान देवी हॉस्पिटल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. बरतानवी काबीना ने अपने बहरी जहाज को ईरान की तरफ से रोक लिए जाने के वाक़े से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल पर गौर व खौफ करने के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया है। इसी दौरान बरतानिया ने ईरान की इस कार्रवाई के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से रुजू हुआ है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने कल के मुतनाज़ा बयान से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए माजरत खाई की है। गवर्नर ने कल एक तकरीर से खिताब करते हुए दहशतगर्दों से कहा था कि वो पुलिस वालों और मासूम लोगों को मारने के बजाय कश्मीर के लूटने वाले सियासतदानों को गोली मार दें। सत्यपाल मलिक ने आज वजाहत की कि वो रियासत की हालत अज़ार से मुतासिर होकर गुस्से के आलम में ये बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 70 साल में कश्मीर को जिस तरह लूटा गया उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। गवर्नर की हैसियत से उनका यह बयान नामुनासिब है, लेकिन एक सियासतदान की हैसियत से उनका बयान दुरुस्त होता है। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक बच्चा करार दिया और कहा कि उनके पास सिवाय ट्वीट करने के कोई दूसरा काम बाकी नहीं रहा।
चाहिए लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पीएसओस को मारते हैं, एसपीओ को मारते हैं। नहीं, क्यों मार रहे हो भाई इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी है। इनमें से भी कोई मारा है आपने अभी? ये फिजूल में अपनी जान गंवा रहे हैं, कुछ नहीं निकलना इससे। बंदूक से कोई चीज हासिल नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में बंदूक के जरिए सरकार को कोई नहीं झुका। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कर्नाटक के सियासी बहरान के मामले पर राज्यसभा में अपोजिशन सरकार ने खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से इजलास को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। सदनशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू की बार बार तलखीन के बावजूद कार्रवाई में खलल पड़ता रहा, जिसके बाद उन्होंने सुबह की कार्रवाई को 2 बजे दिन तक मुलतवी कर दिया। This is the matter which is pending before the court. The matter is pending before the court. Please sit down. Zero hour, Sri Sanjay Raut. Please be seated. The matter is before the Supreme Court. I have already told you. And this Human Rights Watch Commission report is of last year. You yourself have mentioned it. 2018. So after 2018, what is the urgency now to discuss now? Please. This is not the way. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Don't take the rights of the members. There are 20 zero-hour mentions which are important. I have admitted. Nothing shall go on record. लोकसभा में आज इजलास के आगाज पर लोक जनशक्ति पार्टी के रुकन रामचंद्र पासवान के देहांत पर ताज़ियती ख़रादात मंजूर की गई और इसके बाद इजलास को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। समस्तीपुर से 4 मरतबा मुंतखब होने वाले रामचंद्र पासवान का कल दिल्ली में देहांत हो गया था। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी एजेंसी इसरो के अहम तरीन और बाविखार मिशन चंद्रयान 2 को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ दागा गया। चंद्रयान को दरअसल 15 जुलाई को दागा जाने वाला था, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी हो गई, जिसके सबब आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। हिंदुस्तान ने पहले चांद मशीन को PSLV का इस्तेमाल करते हुए 22 अक्टूबर 2018 को छोड़ा था, जिससे चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता चला गया था। चंद्रयान 2 जुनूबी खुदबी इलाके तक पहुंचने और इंसान की रसाई का पहला मिशन होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 918 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी इम्कान है कि एतमाद का वोट लिए बगैर मुस्तफी हो जाएंगे। उन्होंने गवर्नर वजूभाई वाला से शाम 7 बजे मुलाकात का वक्त मांगा है। उनका यह फैसला कर्नाटक स्पीकर KR रमेश के बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जनता दल इत्तेहाद को एतमाद का वोट हासिल कर लेना चाहिए। पूरा मुल्क उन्हें देख रहा है।
और इस सियासी बहरान में उन्हें कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए। स्पीकर ने शाम 6 बजे की डेडलाइन दी थी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के रिमार्क पर नापसंदगी का इजहार करते हुए बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा ने उन्हें पार्टी हेडक्वार्टर तलब किया। उनके बयान को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पेट प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाने के मुतरद्दिद समझा जा रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने नड्डा के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी PL संतोषी से भी मुलाकात की और इन दोनों ने उससे कहा कि वो पार्टी के प्रोग्राम और नजरिए के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करे। मालेगांव बम धमाकों की मुलजिम प्रज्ञा ठाकुर ने जो फिलवक्त जमानत पर रिहा है, बीजेपी के कायदीन से मुलाकात के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि प्रज्ञा ठाकुर ने मुतनाज़ा बयानात के जरिए हमेशा खबरों में रही हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के खातिर नाथूराम गोडसे को एक मुहब्बे वतन करार दिया था। नामपल्ली बुरखी मार्केट के रहने वाले एक 36 साल शख्स गौस खान ने कल रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। खानदानी झगड़ा खुदकशी की वजह बताई जाती है। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना रवाना कर दिया। रोज पी के आते, गड़बड़ी करते, वो धूम धूम करते, वो फोड़ते, ये तोड़ते, गाली गलौज करते, सो जाते। थोड़ा खाना खाए तो खाते, नहीं खाते नहीं खाते, सो जाते, खत्म। आज भी मैं तो ये बच्चा प्रोजेक्ट बनाता बोले तो मैं लेके गई थी, झिलक में थी मैं, फ़ोन करके बोले अब्बा जी ऐसा कर लिया बोले तो भाग गए। तो करने की वजह क्या है? इनको कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी थी? क्या नहीं मालूम, कुछ बोलते ही नहीं थे। उन्होंने क्या करेंगे, पीले के आगे घूम घूम मार लेते थे सीने को, वो सब फूल जाता था। क्या काम करते थे? देखो आप गाड़ी चलाते थे, गाड़ी नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं, साल भर से बेकार है। बेकारी में देखो ऐसे तमाशे कर रहे थे। क्या नाम है इनका? गौस खान। गौस खान। कैसा आके डोर बंद कर लिए, हम लोग को नहीं मालूम क्या कर लिए। सो बाद में आके देखे तो डोर बंद था, तो डोर खोले हम लोग, मार के दरवाज़ा तोड़ के निकाले बाहर, दवाखाने को लेके चले गए। क्या नाम? गौस खान। गौस खान। क्या उम्र है इनकी? 36 है शायद। तो कई के लिए उन्होंने कई को करे, कुछ टेंशन था? कुछ भी नहीं, ड्रिंक करके आके रोज ऐसे कर लेता हूँ। रोज मतलब क्या रोज क्या करते थे? मतलब ऐसे आके ऐसे चवाजा कर लेते, पुकार लेते रहते। तो अभी फांसी लिए सो आपको कैसा मालूम है? वहाँ खिड़की में से देखे, वो टूटी हुई खिड़की है ना जी, वहाँ से देखे। कुछ टेंशन था उनको सा? नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हॉस्टल में PhD की एक तालिबा की लाश बाथरूम में पाई गई। बताया जाता है कि 26 साल दीपिका महापत्रा जहनी तनाव का शिकार थी। पुलिस ने बताया कि दीपिका ओडिशा की मुतवत्तिन थी और उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं पाए गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 के दागे जाने पर मसरत का इजहार किया। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद देते हैं और हिंदुस्तानी अवाम भी इस कामयाबी पर काबिल मुबारकबाद हैं।
रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी अपने ट्वीट के जरिए हिंदुस्तानी शहजादों को मुबारकबाद दी। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने आज बहादुरपुरा असम्बली हल्के के तहत गाजी बंडे में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर एम गफ्फार, हुसैनी पाशा और दूसरे भी उनके हमरा थे। दवाखाने का इनॉग्रेशन है। पहला बस्ती दवाखाने का इनॉग्रेशन अलजुबैल कॉलोनी में हुआ था, ये सेकंड है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला और 3 बस्ती दवाखाने बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदारान हैं इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो सारे लोग जैसा एग्जाम्पल के तौर पर कॉरपोरेटर्स हैं, इस इलाके के MLA हैं, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स हैं, हम तमाम लोग ये तय करे हुए हैं कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आवाम को जितनी सहूलत मिलना चाहिए इंशाअल्लाह ताला उतनी सहूलत हम आवाम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हत्तल इम्कान कोशिश किया जा रहा ये है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड्स होने दीजिए या सीवर लाइंस होने दीजिए या वजीफ़े होने दीजिए या बस्ती दवाखाने होने दीजिए, जो भी सहूलतें आवाम को गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए वो सारे सहूलतें हम आवाम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा MLAs, कॉरपोरेटर्स और वर्कर्स को अपने मीटिंग्स में कहते हैं, जब आपको आपके इलाकों में ज़िम्मेदार बनाकर भेजा गया है आवाम की सहूलत के लिए काम करिए। आप वो चीज़ को याद रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वर्कर इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आवाम को जितनी सहूलत मिलना चाहिए वो सारी सहूलतें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाजी बंडा इलाका एक गरीब इलाका है। यहाँ पर जब ये दवाखाने का आज जो इनाग्रेशन हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक डॉक्टर्स, नर्स और यहाँ का स्टाफ मौजूद रहेगा। आप सारे लोग आपके चैनलों के ज़रिए इस गाजी बंडे इलाके के आवाम को ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस दवाखाने से सहूलत उठाइए और फ़ायदा पहुँचाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो भी कामयाबी आज आवाम के दरमियान में है, उस आवाम की का जो साथ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कर वो सारे सहूलतें आवाम को पहुँचाएगी। शुक्रिया। मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकारा काजल अग्रवाल ने वनस्थलीपुरम में आज मंगालिया शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया। वरंगल के बाद यह हैदराबाद में दूसरा बड़ा शोरूम है। इस मौके पर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, कॉर्पोरेटर विट्ठल रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। मंगालिया के मैनेजमेंट ने बताया कि मजीद 2 शोरूम्स खोले जा रहे हैं जो कोकटपल्ली और AS राव नगर में होंगे। సెల్ ఫోన్ తీస్తారా? తీసుకోవాలా భయ్యా? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।